آج ہم نے اسی حوالے سے چونکہ پورے مہینے میں روزے رکھنے کے بعد ایک خاص طرح کا معمول ہو جاتا ہے. شروع میں آپ دیکھیے جو روٹین ہوتی ہے شعبان کے بعد جب ابتدائی روزے ہوتے ہیں 3-4 اس میں ایڈجسٹ ہونے میں مسائل آ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے تو اب عید آئے گی تو ایسا لگے گا کہ بس خوب کھائیں اور خوب پئیں, اور ایک بالکل روٹین میں آپ کی تبدیلی آ جاتی ہے. تو آج ہم نے خاص طور پہ اسی لیے مدعو کیا ہے ایک نیچرل میڈیسن کے ایک ماہر ہیں ڈاکٹر ادریس صاحب کو. ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو معمولات جو آنے والے دن ہیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کیا جائے. بالکل یہ بہت ضروری ہے ڈاکٹر صاحب سے آج بات کرنا, کیونکہ رمضان میں ایک سسٹم آپ نے جیسا کہا کہ پورا چینج ہوا ہوتا ہے, پھر ایک دم سے لوگ بہت زیادہ عید پہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. میں کچن سے ہو کے آتی ہوں اور پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے, اور پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ سحر کے وقت اب جو آپ کے ناشتے کے اوقات دوپہر کے اوقات پورا یعنی کہ باڈی وہ دوبارہ ری ایڈجسٹمنٹ ہونے والی ہے, تو اس کے کیا اثرات آئیں گے باڈی پر, اس کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے. میں بس تعارف کرا دوں کہ ڈاکٹر ادریس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو ان سے ہم پھر بات کریں گے. نیچرل میڈیسن, یہ بھی میں نے ذرا پوچھنا ہے کہ نیچرل میڈیسن کے ڈاکٹر یہ ہربل کہلائے گی نا ایک طرح سے, ان کے ڈومین میں کیا کیا آتا ہے. اور اب تو میں پھر اس کا مطلب ہے دوسرے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں, کیونکہ میں آئی ایم اے پرسن جو کہ ہمیشہ بڑی آرگینک چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تو اگر ڈاکٹر صاحب نیچرل میڈیسن کے ہیں تو آئندہ سے دوائی ڈاکٹر صاحب سے لی جائے گی. انم کیا بن رہا ہے جو کچن پورا مہینہ obviously ایک پوری روٹین کو آپ جو ہے وہ فالو کرتے ہیں, اور اس کے بعد اب عید بھی جو ہے وہ آنے والی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے جو ہے وہ پوچھ تو بہت پہلے لینا چاہیے تھا, لیکن چلے کوئی بات نہیں, آپ ہمیں اب موقع ملا ہے تو آپ پوچھ لیتے ہیں کہ افطار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا, مطلب خالی پیٹ اگر آپ کا اتنا لمبا عرصہ ہے تو اس کو یعنی افطار میں کس چیز سے شروعات جو ہے وہ کرنی چاہیے. پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے, اکثر لوگ دودھ سوڈے کا استعمال کرتے ہیں یا فزی ڈرنکس سے جو ہے وہ روزہ کھولنے کو پریفر کرتے ہیں, پھر آئلی چیزیں آپ کو پتہ ہے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں, تو بہترین کیا چیز ہو سکتی ہے جس سے ہم اپنے افطار جو ہے اس کو کھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا کویسچن کیا آپ نے. یہ اکثر لوگ جب اس میں یہ فزی ڈرنکس اور یہ چیزوں استعمال کرنے کے بعد جب بیمار ہوتے ہیں تب آ کے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے. عموماً یہ پوچھنے کا پہلے کا سوال ہے. ایک تو آپ کی پوری پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ 15 سے 16 گھنٹے فاسٹنگ میں ہوتے ہیں, آپ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے. اس دوران آپ کا جو باڈی ہے اس کے اندر بہت ساری میٹابولک چینجز آ رہی ہوتی ہیں. آپ کا اسٹامک جو ہے وہ اس دوران ریسٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو کچھ بریک آئی ہوئی ہوتی ہے. تو یکدم جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارے جو لوگ ہیں وہ ٹھنڈے مشروبات سے شروع کرتے ہیں, بالکل یخ مطلب آئسی کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت طلب بھی تو اسی چیز کی ہو رہی ہوتی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں نا کہ اس طلب آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس میں ہمیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, کہ جب آپ بالکل ہی یکدم آپ کے اس وقت جب پوری دن باڈی جو ہے وہ یا اسٹامک جو ہے وہ ریسٹ پہ ہے, تو اسٹامک میں ایک ایسڈ سیکریشن جو ہے وہ نیچرل ہوتی ہے جس نے آپ کی ڈائٹ کو ڈائجسٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایسڈ یکدم اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو مطلب ایک قسم کے ہم دوسرے عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ میدا ہیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یکدم جب آپ اس پہ پانی ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ گیسز بنانا شروع کرتا ہے, اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے تو سنت رسول کے مطابق بھی کھجور کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ کھجور جو ہے وہ ایک انسٹنٹ انرجی ہے, یا کھجور یا شہد. سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے, وہ ایک تو ہمارے سیگمنٹ ذرا تھوڑے مختصر ہوتے ہیں اس لیے بھی آپ کو مجھے کاٹنا پڑ رہا ہے, مگر اب آپ کا یعنی کہ ایک مہینے کے بعد میدا ایڈجسٹ تو ہو گیا ہوتا ہے نا, مطلب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک فرق ہے نا. بالکل ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, لیکن میدے کو کس وقت کیا ریکوائرمنٹ ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایڈجسٹ تو ہو گیا ہے میدا, ایڈجسٹ اس وجہ سے ہو گیا کہ میدا اب آپ کو 1 بجے لنچ نہیں مانگتا آپ سے. میدے کو پتا ہے کہ اب مجھے مغرب کے بعد ہی کھانا ملنا ہے, تو میدا یہاں ایڈجسٹ ہو گیا ہے. آپ بھوک اور نیند کو جہاں ایڈجسٹ کرتے ہیں وہیں ہو جاتی ہے. میدا اس وجہ سے ایڈجسٹ ہو گیا, وہ آپ سے اپنا برنچ مانگ رہا ہے, نہ لنچ مانگ رہا ہے, نہ کچھ سنیکس مانگ رہا ہے. میدا اس وجہ سے تو ایڈجسٹ ہو گیا کہ اس کو پتا ہے کہ اب جیسے ہی مغرب کی اذان آئے گی, یہ بڑا کویسچن ہوتا ہے. ایک تو آپ سارا دن جب فاسٹنگ میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کو ہائیلی انرجک ڈرنکس یا ہائیلی انرجی جو فوڈ ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو فوری طور پہ انسٹنٹ انرجی ہمیں دے سکتی ہیں وہ یا شہد دے سکتا ہے یا کھجور دے سکتی ہے, جو ایزی ٹو ڈائجسٹ ہوتے ہیں اور ود ان منٹس جو ہیں وہ آپ کے بلڈ میں شامل ہو کے آپ کی انرجی کی جو گلوکوز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہمیں اگر کولڈ ڈرنکس کی طرف جانا بھی ہے تو کولڈ ڈرنکس کی بجائے کول ڈرنکس کی طرف جائیں. کولڈ ڈرنکس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی مطلب ایک 12 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بلو چلے جاتے ہیں, جو بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں.
या कोल्ड ड्रिंक हो जाते हैं, तो वो हमें उससे अवॉइड करने के बजाय हमें नॉर्मल वाटर की तरफ आना चाहिए। और नॉर्मल वाटर भी मिनिमम क्वांटिटी में लें, आप आधे से पौना गिलास पी लें, रूम टेम्परेचर पे गिलास, या थोड़ा बहुत ठंडा हो जैसे घड़े का पानी होता है, इतना ठंडा लेके उसके बाद आप थोड़ी सी डाइट ले लें। कुछ भी आप हल्का फुल्का फ्रूट चाट ले लें, फ्रूट सैलेड ले लें, रशियन सैलेड ले लें, या आप खजूरें ले लें, या आप थोड़ा बहुत मतलब हल्के फुल्के राइस ले लें, तो उसके बाद फिर आप पानी साथ साथ एडजस्ट करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइए कि अब पूरे महीने आदी हो गए हम रमज़ान की रूटीन के, कभी 16 घंटे 15 घंटे 15.5 घंटे 16 घंटे मैदा जो है वो खाली रहा, और आप सहर के वक्त उठ रहे हैं, फिर उसके बाद आप फजर के बाद लोग कुछ सो जाते हैं, कुछ नहीं सोते, और फिर आप अपने मामूलात पे चले गए। फिर इसी तरह रात के खाने की भी रूटीन बिल्कुल, कुछ लोग अफ्तार के वक्त खा लेते हैं, कुछ लोग ज़रा लेट खाते हैं। अब एक दूसरी ज़िंदगी जो है वो शुरू होने वाली है, जिसकी रूटीन आपको फिर 11 महीने रखनी है, मगर इस पूरे महीने के बाद फौरी तौर पे 2-4 दिन में तो इसके असरात पड़ते हैं। एडजस्ट कितनी आसानी से आदमी एडजस्ट हो सकता है सारे मामले? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि जो फूड है ना या आपकी नींद है, ये इंसान के अपने कंट्रोल में होती है, वो एडजस्ट कर सकता है। ये आपका 1 महीना पूरी ट्रेनिंग का होता है। इसमें ज़्यादातर जो हम डाइट या खुराक ले रहे होते हैं वो समटाइम हमारी नीड से ज़्यादा जा रही होती है। हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते जा रहे होते हैं, ऑफिस में, हम घरों में थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये महीना एक्चुअली पूरी ट्रेनिंग का होता है कि आपने एक ख़ास रूटीन बनानी है, उसी टाइम पे खाना है। उस टाइम से आगे पीछे अगर आप करते हैं तो उससे आपका मैदा डिस्टर्ब होता है। तो ये जैसे ही ईद आती है तो ईद में हम जो सारे महीने की ट्रेनिंग होती है वो यकदम ही भूल जाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि हमें इस ट्रेनिंग से इतना फ़ायदा लेना चाहिए कि हम उसके बाद भी अपने खाने की एक रूटीन बना लें। कोई भी रूटीन आपकी हो सकती है, जैसे कुछ लोग अब लेट नाश्ता करते हैं, 10 बजे करते हैं, वो फिर शाम को खाते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब वापस आके आपसे बात करूंगा, मगर कुछ लोग जो मैदा जिनका कमज़ोर हो जाता है या ज़ईफ़ होते हैं, उनके लिए कुछ आप अगर फरमाना चाहें कि भाई फ़ौरन ही अगले ईद के दिन से मामूलात में तब्दीली आएगी, तो देखा गया कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है एडजस्ट होने में। बिल्कुल, मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रेक के बाद इस पर तफसीलन जो है वो हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है किचन में। ज़रा अनम से पूछ लें कि जो बना रही हैं वो बना कैसे रही हैं, रेसिपीज़ होंगी। इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। रेडी है, मुझे लगता है आपका ऑयल गर्म हो गया है, तो अगर वो हम मसाले के बाद जो मैदे का हशर होगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा उस हवाले से डॉक्टर साहब जी जी जरूर, जी बिल्कुल बिल्कुल मसाले आपने आज इस्तेमाल किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइए कि वो एडजस्टमेंट के लिए क्या किया जाए, जो लोग जिनका मैदा कमज़ोर है या जो ज़ईफ़ है, या आप समझते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी पे? अच्छा, 2 तरह नहीं फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। एक आदमी 3 बजे उठता है, फिर वो 9 बजे नाश्ता करेगा और फिर दोपहर को खाएगा, पूरे महीने उसने सिर्फ सुबह खाया और फिर अफ्तार के वक्त खाया। आपके ना सवाल के 2 जुज़ हैं। एक ये है कि जो बंदा खुद ज़ईफ़ है, एक वो है जिसका मैदा ज़ईफ़ है। ठीक। अब जो खुद ज़ईफ़ है ना, उनका मसला ये होता है कि उनके चूँकि दांत प्रॉपर वर्किंग में नहीं होते, तो वो डाइट को प्रॉपर च्यू नहीं कर पाते, चबाते कम हैं। वो डाइट जो है वो ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में मैदे तक जाती है, फिर मैदे के लिए हज़म करना मुश्किल हो जाता है। तो जो ज़ईफ़ हज़रात हैं उनके लिए तो सबसे बेहतर यही होता है कि वो ज़्यादातर नरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। वो अगर रोटी भी लें तो वो ज़रा मोटी रोटी लें, नरम रोटी लें, फिर दलिया वगैरह का इस्तेमाल करें, राइस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, साबूदाना यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट नरम यूज़ कर सकते हैं, केला है, सेब है, तो इस तरह के वो नरम ग़िज़ा अगले दिन से एडजस्ट हो जाती है, कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं। किस हवाले से? यानी कि अगले दिन से आपकी रूटीन बदली, कोई उसमें फर्क नहीं, रूटीन जो एक आपकी पूरा महीना एडजस्ट होती है ना, उसके बाद अगर आपने डाइट की रूटीन बनानी है तो वो रूटीन वैसे तो मैदे ने तो ना नहीं करने की, जो भी आप डाल दें उसमें, लेकिन उसके लिए जो उसकी रूटीन है वो डिस्टर्ब होगी तो वो आपको डिस्टर्ब ज़रूर करेगा। तो आपने इस ट्रेनिंग से सीखना ये है कि मैंने खाने के एक टाइम फिक्स करना है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा 9 बजे उठता है तो 9-10 बजे वो नाश्ता कर रहा है, तो वो डेली इतने बजे ही करे। वो ये नहीं है कि कभी 12 बजे कर रहा है, कभी 2 बजे कर रहा है, कभी सुबह 6 बजे कर रहा है, कभी 1 बजे खाना खा रहा है, कभी शाम 5 बजे खा रहा है, और इस दौरान भी कभी चाय चल रही है, कभी बिस्किट चल रहे हैं, कभी कोई चिप्स आ रही है, कभी कोई और स्नैक्स आ रहा है, कभी ब्रंच आ रहा है। ये बड़ी मुख्तलिफ तरह की रिसर्चेस जो हैं वो सामने आती हैं। कभी वो कहते हैं कि जी वो वक्फे से आप खाएं तो बेहतर है, कभी कहते हैं जी गैप रख के खाएं तो बेहतर है। तो आपकी जो यानी कि जो आपका जो शोबा है जो नेचुरल मेडिसिन का, वो क्या कहता है? हमारा शोबा यही कहता है कि जो आपने खाना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग इसी को कहते हैं, कि आपका जो दौरानिया है, जो वक्फा है, वो फिक्स होना चाहिए। कि आप 6 घंटे बाद खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब है 6 घंटे बाद ही खाना खाना है और हर सूरत खाना है। और जो इस दरमियान खाना है वो ज़रूरत के मुताबिक, मौसम के मुताबिक, मूड के मुताबिक, और फिर आपकी जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक। अब एक बंदा जो है वो मज़दूर है, वो
वो सारा दिन मेहनत करता है, उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। वो इस दौरान कोई चीज़ भी एनर्जी वाली ले सकता है, वो मशरूबात, वो दूध पी सकता है, वो उस दौरान को खजूरें खा सकता है, वो कोई ड्राई फ्रूट रख सकता है अपने साथ, वो चीज़ें खा सकता है। अब एक बंदा जो ऑफिस होल्डर्स है, जो मतलब इस तरह सारा दिन कुर्सी पे बैठने वाला है, उसने ऐसा कोई ख़ास कैलोरीज बर्न नहीं की, उसने कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं की, तो उसके लिए ये होता है कि वो वक्फा पूरा रखे 6 घंटे का। वो सुबह एक नाश्ता करके गया तो उसका एक टाइम है कि उसने 2 बजे लंच करना है, तो 2 बजे ही लंच करे। रूटीन में एक हफ्ते में गोश्त की मिकदार कितनी लेनी चाहिए आम आदमी का आपसे? देखिए ये सवाल फिर जो है ना थोड़ा सा जो हमारा शोबा है और आम शोबा, उसमें फ़र्क यही आता है कि हम चलते हैं पर्सन टू पर्सन और प्रोफेशन टू प्रोफेशन। जैसे मैंने पहले बात की कि ये जितनी किसी बंदे को, वैसे तो प्रोटीन है गोश्त के अंदर और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की ना, ऐसे लोग जो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, घरों में सफाइयाँ करते हैं, उनके लिए वीक में 3 से 4 दफ़ा तो मिनिमम है। ठीक है। और जो लोग बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते वो 1 से 2 दफ़ा ले सकते हैं। 1 से 2 दफ़ा ले सकते हैं। और मीट में भी फिर आगे डिफरेंट पोजीशंस हैं। आपका शोबा क्या कहता है कि सब्जियां वगैरह, सब्जियां और फल बेहतर हैं या ये है कि गोश्त ज़्यादा खाना बेहतर है? देखिए मुतवाज़न ग़िज़ा में तो तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सब्जियां, फल और गोश्त। मुतवाज़न ग़िज़ा तो इसी को कहते हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं जापान की आपको एग्जांपल दूं, तो जापान वाले इसी तरह नहीं करते कि एक दिन राइस बने तो फिर सारी प्लेटें राइस से ही भरी हुई हैं। अच्छा। ठीक है ना। और अगर गंदम खा रहे हैं तो फिर सारा दिन गंदम खा रहे हैं, या फिर पूरा दिन उसी का इस्तेमाल? नहीं, पूरा दिन नहीं, मतलब पूरी डिश हमारी जो टेबल पे रखी हुई है ना, वो एक ही, मतलब अब मीट बना तो सिर्फ मीट ही है। वो छोटे छोटे पोर्शन बनाते हैं, थोड़ा सा फ्रूट रखते हैं, थोड़ी सी दही रखते हैं, थोड़ा सा साथ। लेकिन एवरेज एज और सेहत बड़ी अच्छी है उनकी। वही ना, उनकी लाइफ जो स्पैन है वो भी बढ़ गया हुआ है ना। वो थोड़ी सी फिश, उनके हर खाने में थोड़ा सा फिश का टुकड़ा ऐड होता है, थोड़ा सा चिकन ऐड होता है, थोड़ी सी रोटी होती है, थोड़ा सा सालन होता है, थोड़ा सा मक्खन होता है। तो वो इस तरह एक प्लेट के पोर्शन बनाते हैं और वो मुतवाज़न ग़िज़ा होती है। जो हम अक्सर सुनते आते हैं ना, मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है? मुतवाज़न ग़िज़ा वो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी शामिल है, प्रोटीन्स भी शामिल हैं, फैट्स भी शामिल हैं, सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक शामिल हैं। ये नहीं है कि अगर हमने मीट आज बनाया है तो फिर सारे वो मीट ही खाया जा रहे हैं। हमारे आपको पता है मुतवाज़न प्रोग्राम भी उसी को कहते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, उधर किचन में भी कुछ बन रहा हो, इधर जनाब कुछ सुन भी लिया जाए, कुछ गुफ्तगू भी हो जाए। तो मैं ज़रा इसको मुतवाज़न करके फिर आपकी तरफ वापस आता हूँ। चिश्ती साहब, क्या